Now, today I'm going to start a new chapter from geography. And this chapter, if I say that from the point of view of boards, you will be having one question that is from map. And definitely there is one question which may be a 5-marker question that can be on different, concepts. And the name of the chapter is Mineral and Energy Resources. Now, as the name itself says, minerals and energy resources. यानी कि मिनरल से निकला हुआ हमारा रिसोर्स which we use for different purposes, and energy means all those which are giving us heat and electricity. Those come under the energy resources. The chapter is very interesting, and some of you might have even studied the same in your science also, because when I taught this chapter earlier, तो my students used to tell me कि हमने मैम ये same जो है इसका जो definition है that's there in our science, so can we use the same definition or not? So yes, you can use the definition that is for the minerals, because the definition goes the same. If we look into your अपने आसपास में देखते हो तो सबसे पहले आप लोग सुबह क्या करते हो? The very first thing that you do in the morning is brush your teeth, right? I don't know अगर आप में से कोई ऐसा हो जो नहीं करता, वो एक अलग बात है, but 100% all of us first of all हम लोग जो है सबसे पहले उठकर हम ब्रश करते हैं, right? And many of the children, elders also, we use a talcum powder. पाउडर लगाते हैं मुंह पर. Then we wear the gold ornaments, silver ornaments, platinum, right? And when we are eating the food, spinach, पोपाई को जो बहुत पसंद है, पालक, everything which we consume, the bus in which you go to your school, the transport, everything, wherever, whatever we are using around us has minerals. And that is why we say that minerals are indispensable part of our life. अगर आप अपनी बुक को खोलते हो तो सबसे ऊपर आता है, and this is also a question. Indispensable मतलब जो हमसे अलग नहीं है. The food we are eating, even हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो दांत हैं, हमारे जो नाखून हैं, कैल्शियम. Then every doctor says that we require iron for our good wellness. यानी कि whether it is the human body, whether we are eating, whether we are consuming, everywhere in the toothpaste you find the fluorides. Then in the, आपने देखा होगा कुछ आपके टूथपेस्ट होते हैं वो चमकीले होते हैं, like close up. So the particles which are shining, it's mica. That means everything whether we are consuming, using, or even within our human body also, minerals are present. एक क्वेश्चन आता 1 मार्कर में या फिर मतलब कि which is the hardest and which is the softest आपका mineral. तो जो मैंने आपको भी बताया talc, the talcum powder, talc, that's the softest, and diamond is the hardest mineral found. So that means what is a mineral? Minerals, thus we can say that the a homogeneous, naturally occurring substance as per your chemistry having a definite internal structure. ये आपको भी पता है, when you are talking about iron we use Fe, हम लोग ferric हम लोग जो है Fe use करते हैं.
For calcium we are using one particular chemical structure. So anything which is homogeneous, homo matlab single, with a definite internal structure is called as mineral. Now there are two kinds of people in the social science, geographer and geologist. ये भी आपके पेपर का ही है. All of this, particularly the new one, the students who are attending this for the first time, everything is from the NCERT only. तो जोग्राफर यानी कि जोग्राफर कौन होता है? ज्योग्राफी का मतलब क्या है? व्हेन वी से ज्योग्राफी, हमने 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में, 9th में, 10th में. तो व्हाट इज ज्योग्राफी? वेयर वी आर actually studying about the places, the physical features, how these physical features have been formed. ये सब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में. तो ज्योग्राफर जब मिनरल को पढ़ता है तो he studies it as a part of Earth's crust, whereas geologists पढ़ते हैं to find the age of rocks and earth. अब हम लोग क्यों कहते हैं कि earth was born billions of years ago? How do we say that this rock was formed here? यहाँ पर जो है, when we talk about the Himalayas, we say it is formed with the metamorphic rocks. वहाँ पर sedimentary rocks है. ऐसा हम कैसे बोलते हैं? How do we come to know? How do we, in 9th standard in the physiographic features we had studied कि जो Himalayas का जो सबसे ऊपर वाला है, which is consisting of the granite. So how did we find it? That is because the geologists have studied it. So minerals को पढ़ने के लिए एक chemistry, अगर हम लोग if we talk about a person who is in the chemistry lab, उसके लिए minerals एक structure है. Geographer के लिए part of Earth's crust है, तो geologist के लिए rocks and earth की age का एक जरिया है. Now most of the time the minerals, they are found in rocks. और एक अगर हम rock हम बोलते हैं तो उसमें कई तरीके के minerals होते हैं, but जिसका the quantity is more, then हम उस particular rock को we call it as the ore. जैसे आप बोलते हो iron ore. So what is the meaning of iron ore? Means that particular rock is comprising of more of ferrous. तो हम उसमें से जो है extract करते हैं iron को. Maybe उसमें और भी minerals हो सकते हैं, but their quantity might not be that much कि हम उसको mine करके निकालें. Whereas limestone, this is a one marker question and can be asked in an MCQ or maybe in your fill up the blanks. Limestone is the only mineral consisting of single unit. मतलब वो पूरा एक ही है, limestone, which is used in the formation of cement, जो आप next chapter में पढ़ोगे. When you are studying about the making of cement, उसमें आप पढ़ोगे limestone हम use करते. As I told you that this particular question can be 3-5 marks का ही ज़्यादा chance होता है. तो rocks and minerals, and this I know most of you have studied it in your science also, key difference between minerals and rock. तो mineral आपका एक naturally occurring substance है which has got a proper atomic structure, कुछ physical properties, like अगर हम लोग iron को लेते हैं तो the physical property is it repels towards a magnet and do not have the fossils, whereas आपके rocks होते हैं which are aggregate of minerals. The एक rock में there might be 2 or 3 minerals, 2 minerals, and that is why we cannot find any definite chemical compositions. Some of them, ये जो rocks हैं, they are formed due to many decomposition से भी बनता है, fossils से भी. Fossils अब क्या है?
जो आपके बायो एनिमल्स हैं या फिर उनका जो है when they are decompressed, they may be having the fossils. So that is the difference between rocks and minerals. Now, when we say what are the kinds of minerals available, when I tell you, you can mark those questions as important. We can classify the minerals into metallic and non-metallic. Metallic, which is having the shine, the one which may be ferrous or non-ferrous. These are all one marker question. अभी तक ये सब कुछ one marker में ही आए हैं. Ferrous means the one which is comprising or consisting of iron, iron ore, manganese, nickel, cobalt. ये सब आपके यूज होते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में. Whereas non-ferrous, copper, आपके घरों में भी कॉपर बॉटम आपके खाने का होता है. लीड, tin, bauxite. Bauxite is the ore for aluminium. Then we also have gold, silver, platinum. Then those which are not having any metals, mica, salt, potash, granite, limestone, marble, sandstone, etc. And of course, the energy minerals, coal, petroleum and natural gas. और इस chapter में you all are going to study all of these minerals in detail. Not all, but just say you will be studying iron ore, you will be studying copper, bauxite, you will be studying मतलब ये सब आप जो हो पढ़ोगे. First, I said minerals का definition. Minerals are indispensable part of our life. एक question ये. The second question is, how do geologists and geographers study minerals? Difference between rocks and minerals. Then difference between metallic and non-metallic. Metallic, which contains metal, and most of them are formed in the igneous rocks. Because metal है तो shine रहता है, like iron, copper, bauxite. Non-metallic, which will not be consisting of any metal, they are in the sedimentary. Sediment मतलब नीचे बचा हुआ, sediment बन जाना. They are neither hard nor they have shine. But yes, mica is used for bringing shine. अब ये वाला जो question है, mode of occurrence of minerals, it's one of the sure short questions. इसमें दो questions ऐसे हैं जो अगर आप पेपर को निकालोगे तो you will definitely find. One is the major iron ore belts and the second one is mode of occurrence of minerals, and these two question comes in the option. मतलब एक तरफ से अगर आप कहो even in your periodic you may be having this question as a sure shot. Where you can find the minerals. 1, 2, 3, 4, 5. आपको इसमें 5 याद करना है और जो मेजर आयरन ओर बेल्ट है वो 4 आपके आएंगे. Igneous and metamorphic rocks. Now when we say igneous and metamorphic rocks, इनमें क्या होता है? You may be finding, ये जो rocks हैं इनके अंदर you may be finding it थोड़े बड़े आपके जो है लार्जर अकरेंस होता है, उनको हम लोड बोलते हैं. एंड जो आपके पतले पतले बीच में आपके जो है जैसे दो रॉक्स हैं उनके बीच में आपके वेन, जैसे हमारे वेन्स होते हैं, लाइक दैट इफ दे आर फाउंड दे आर कॉल्ड एज वेन्स. They are usually formed when minerals in liquid or molten or gaseous form force upward towards a cavity. जब नीचे से ऊपर की तरफ इनको पुश किया जाता है तो दे आर फॉर्म्ड. सेकेंड इज सेडिमेंट्री. आपको ये वाले जो पांचों के पांचों हैं यू हैव टू रिमेंबर और लर्न और रटना जो भी आप समझ सकते हो. सेडिमेंट मतलब व्हेन यू आर फिल्टरिंग समथिंग तो नीचे आपका जो सेडिमेंट रह जाता है. सिमिलरली द मिनरल्स अकर्स इन द बेड्स और लेयर्स like coal, iron, gypsum,
पोटाश, इंडिया में पोटाश नहीं है, सोडियम, बट कोल है, आयरन है, हमारे यहाँ पर ये सब कुछ है. पोटाश वी इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. डीकॉम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, सरफेस मतलब जो आपका बेड रॉक है बिल्कुल नीचे, तो जब वो डीकम्पोज होके टूट जाते हैं, दे लीव अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड, वेदर्ड मतलब इधर उधर उड़ के आ जाना, लाइक बॉक्साइट विच इज द ओर फॉर एल्यूमिनियम. एलुवियल जो आपके वाटर आता है गंगा का, ये उन हिल्स के बेस पर फॉलो होता है. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, बिकॉज दे आर प्लेस्ड, ये प्लेस हो जाते हैं, इसीलिए इनको प्लेसर डिपॉजिट्स भी बोला जाता है. एंड दे जनरली कंटेन द मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर. कोरोडेड मतलब जो आपका जो है खराब नहीं होता, जंग नहीं पड़ता. गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम इन ओशन वाटर. हमारा जितना भी सॉल्ट है, हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, these are all from the ocean waters. In fact केरला के अंदर है आपका सबसे बड़ा, you have the very big, you can find that ocean bedrock का जो mineral formation है. So this means these minerals can be found in different areas. अब जब हम लोग इन चीजों को निकालते हैं तो what do we call as, we call them as mining. जब हम हम लोग जो है मिनरल्स को उनके ओर से अलग करते हैं, when we are extracting the minerals from the earth, that process is called as mining. आपको पता है in India, most of the countries, mining is not a private job. अब आप में से कोई ये नहीं बोल सकता मैम मेरे घर के अंदर माइनिंग है. माइनिंग इज जहां if the government or anyone finds any kind of mineral, जैसे पीछे हुआ था आज से 10 years back, I remember, यूपी में एक गांव था, वहां पर while they were digging the earth, तो उनको वहां पर नीचे जो है पेट्रोलियम मिला था. तो अगर हमें ऐसी कोई चीज मिल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि बिकॉज वो हमारा एरिया होता है, then we have to report it to the government, and government वहां पर सर्वे करती है, and if they find that that particular area is consisting of some particular mineral, तो they take it under their control. तो हमारे जो मतलब कि जो नेशन होता है, that government is responsible for the mining of those minerals. Now mining can be open मतलब बहुत बड़े बड़े आपके जो हैं, यू माइट बी हैविंग द पिट्स, जैसे आपका बॉक्साइट, एंड वहां पर जो है आपके खोद कर निकाला जाता है, एंड दे आर ऑल्सो क्लोज्ड. लाइक कोल का जो माइन होता वो पहाड़ों के बीच में होता है, एकदम से एकदम पूरा अंधेरा सा होता. देयर इज, आई हैव सीन इन 2 मूवीज, एक कोयला मूवी है शाहरुख खान की, एंड वन मोर मूवी बहुत पुरानी मूवी है कालिया, उसका एंड वाला जो सीन है ना, अगर आप यूट्यूब में डालोगे तो यू विल फाइंड दैट. तो एक तरफ से पूरा पानी सा बहरा होता है, मतलब वो पूरा अंधेरा सा. तो we have the open pit mining also and we have the closed mining also, but in northeast, that's आपका जो है मेघालय वगैरह में, वहां पर यू हैव द डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट वगैरह है. तो वहां बहुत सालों से कम्युनिटी है जोवाई की, दे उनका मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, बट दे हैव देयर ओन माइनिंग एरिया. एंड वो जो माइनिंग है, इट इज नॉट एज पर द गवर्नमेंट रूल, वो थोड़ा छोटा होता है, टनल जैसा, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज rat hole mining.
दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रैट। क्या होता है? चूहा। अब चूहे के जैसा छोटा सा तो नहीं होता, कहने का मतलब ये होता है कि कंपैरेटिवली आपका जो टनल है वो बहुत बड़ा होता है व्हेन यू गो टू द रियल माइंस। लेकिन ये वाले जो माइंस हैं ये इतने होते हैं जिसके अंदर एक इंसान मतलब कि चला जाए। So that is why this is called as rat hole mine. This particular question had come in 3 marker, one only once. तो दिस इज हाउ माइन से हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके मिनरल्स को। Now, minerals can be extracted through the open pit also and through the closed also. Now, to start off with, we are having two kinds of minerals. First, we are starting with metal में ferrous minerals हम start कर, right? तो फेरस के अंदर आपको जो है यू आर नॉट गोइंग टू गेट कि व्हाट इज फेरस मिनरल, यू विल बी गिवन, दिस इज वंस अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में अगर आप किसी भी लास्ट ईयर के अपने स्कूल के पेपर्स को निकालोगे ना, ये क्वेश्चन ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। द मेजर आयरन ओर बेल्ट। आपका जो आयरन है दे आर फाउंड इन टू डिफरेंट वेज। मैग्नेटाइट यानी कि द वन विच इज रिपेलिंग टुवर्ड्स अ मैग्नेट इज द फाइनेस्ट, यानी कि जिसमें आपका 70% आयरन होता है, which is very important for all the industries. Whereas थोड़ा कम होता है, that's called as hematite, जिसमें 50 to 60% आपका आयरन होता है। और हमारे यहाँ पर अगर हम लोग ऑन द मैप ऑफ इंडिया देखते हैं तो जैसे आप बेल्ट पहनते हो तो बेल्ट कैसा होता है? चौड़ा होता है ना? तो सिमिलरली आप उड़ीसा से झारखंड के रास्ते में while you are going you will find the entire belt comprising of the iron ore. आपका मैक्सिमम आयरन ओर जो है वो आपका छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, टाटा जहां पर आपका है, द फर्स्ट जमशेदपुर वहीं पे आपका स्टार्ट हुआ था। देन आपका पूरा मध्य प्रदेश का बेल्ट, महाराष्ट्र का बेल्ट और टिल कर्नाटका, ये जो आपका हम जिसको पहले बोलते थे 9th स्टैंडर्ड में गोंडवाना का ओरिजिनल है, वहां यू विल बी फाइंडिंग द आयरन ओर। द वेरी फर्स्ट इज ओडिशा टू झारखंड। प्लीज इनको बहुत बहुत अच्छे से लर्न करना। उड़ीसा आपका बादमपुर, मयूरभंज, मयूरभंज इज वेरी फेमस फॉर इट्स डांस। ये पूरा आपका झारखंड के सिंहभूम तक आपका पूरा इट्स, यू हैव टू ओनली रिमेंबर द बेल्ट नेम, यू हैव टू ओनली लर्न द नेम ऑफ द बेल्ट। सेकेंड इज दुर्ग। दुर्ग आपका मैप का क्वेश्चन भी है, दुर्ग बस्तर आपका मैप का क्वेश्चन भी है। दुर्ग बस्तर से चंद्रपुर, चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र वाला एरिया। देन थर्ड इज बेल्लरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट। तुमकुर इज वेरी फेमस इन कर्नाटका। ये जो बेल्लरी चित्र, इसमें क्या है कि जो आपका जो पूरा एरिया है ना वो घोड़े के मुंह के जैसा होता है ऐसे आगे से, एंड दैट इज व्हाई दैट एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज कुद्रमुख। कुद्र का मतलब इन सदर्न लैंग्वेज कुद्र मतलब घोड़ा, गुदरई हम बोलते हैं कुद्र। तो कुद्र मुख मतलब घोड़े के मुंह के जैसा है, एंड दैट इज एंटायर एरिया ऑफ कर्नाटका। आपका बेल्लरी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुर सारा आपका कर्नाटका है। देन महाराष्ट्र से गोवा, यानी कि बॉम्बे वाला जो आपका रत्नागिरी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो, they are only exported through Marmagao port. So these are the 4 important belts in India which comprises of the iron ore. Please learn this by heart. Now the second one which we have is manganese. हम लोग निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन ओर इनको लेकर स्टील बनाते हैं। Tata Steels is a very first company which manufactured in Jamshedpur.
The next is manganese. As I said, हम लोग स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं, लेकिन जो हम स्टील यूज करते हैं वो होता है स्टेनलेस स्टील। वो होता है स्टेनलेस। स्टेनलेस मतलब इट विल नॉट करोड। और जो आपके प्लांट्स एंड मशीनरी होती हैं, जितने भी प्लांट्स मशीनरी आपके पास, छोटी फैक्ट्री है बड़ी फैक्ट्री है, एवरी प्लांट एंड मशीनरी इज मेड ऑफ स्टील। And that is why we have Tata Steels, we have SAIL, that is Steel Authority of India Limited. और ये जो स्टील होता है, दिस इज मेड विथ आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीजों को यूज करते हैं। प्लस मैंगनीज इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर, हमारे घरों में इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, इन सब में यूज होता है। नाउ non-ferrous, the one which does not comprises of the very first is copper. कॉपर को आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है। देन आपका जो है, यू विल ऑल्सो बी लर्निंग दी माइका, आई थिंक देयर इज सम, हाँ माइका, इसको अच्छे से लर्न करना है। एंड कॉपर को अच्छे से लर्न करना है कि कॉपर के यूजेस क्या होते हैं। यू माइट हैव सीन इन योर हाउस ऑल्सो, आपके घरों में रेड कलर का नीचे से बर्तन में होता है नाउडेज, कॉपर बॉटम, यू नो, कॉपर बॉटम बॉटल्स, कॉपर बॉटम यूटेंसिल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट हमारे जो एसीज होते हैं, इनके अंदर दे आर यूज्ड, यू नो, बिकॉज ये ना इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कि बचाते हैं। सो दे आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल केबल्स, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। पूरा दिल यहाँ पर विश्वास नगर कंप्लीटली इट वाज अ कॉपर फैक्ट्री। मैंने देखा होगा क्योंकि माय मॉम यूज्ड टू वर्क देयर, उनका ऑफिस था, तो मम्मा मुझे बता देती कि वहां घर घर में होता था। एंड इवन जो कॉपर का जो स्क्रैप होता ना थोड़ा सा, दैट इज टू कॉस्टली because it's used in electricals, electronics, everywhere. Balaghat mine in Madhya Pradesh, Rajasthan and Singhbhum, they are the copper manufacturing main units. Next is aluminium. Aluminium की एक बहुत सुंदर कहानी आपके बुक में भी है, which is there in a very small box. Aluminium is both malleable and ductile. आप उसका वायर भी बना सकते हो, आप उसकी शीट्स भी बना सकते हो। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स ऑल्सो, जो मतलब कि पानी जल्दी गर्म हो जाता है। अगर आप एक स्टील के बर्तन में से यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तो अगर आपने स्टील के बर्तन में रखा और आपने एल्यूमिनियम में रखा ना, तो एल्यूमिनियम विल गेट हीटेड इन 1 minute, वेयर एज स्टील आपका लेट होगा। It is a lightweight, and that is why it is used in many areas, and moreover it is both ductile as well as malleable. हमारे यहाँ अमरकंटक, अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश, जहां आपका नर्मदा रिवर जो है वो अराइज होता है, माइकल, ये सारे एरियाज हैं जहां पर यू फाइंड द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है बेटा, एल्यूमिनियम इज नॉट फाउंड इन, एल्यूमिनिया नहीं होता वो, इट इज फाउंड एज क्ले। क्ले होता ना आपका घर में, हम लोग बचपन में तो हम लोग कलरफुल क्ले खेलते थे, लेकिन जैसे आप अगर आपने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे तो वो जैसा क्ले होता है वैसा क्ले ही मटेरियल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बॉक्साइट, एंड इट इज एन ओपन पिट, पूरा खुला हुआ होता है। उससे क्या करते हैं कि वो बॉक्साइट को निकाल के इट इज पुट इन द फर्नेसेस, देन उसमें से अलुमिना निकाला जाता है, एंड लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम। इट इज सेड कि जब एल्यूमिनियम जो है इट वाज इन्वेंटेड लॉन्ग बैक, तो नेपोलियन को एल्यूमिनियम बड़ा सुंदर लगा। अगर आपसे मैं बोलूंगी या मुझसे बोलेगा कोई तो मैं कहूंगी एल्यूमिनियम, ओ माय गॉड, व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम को तो हम लोग बेगर्स के हाथ में देखते हैं, वो मांग रहे होते हैं भाई माई मेरे को हाथ में देते। लेकिन जब नेपोलियन को
एल्यूमिनियम उसने देखा तो उसको लगा कि दिस इज अ वेरी प्रीशियस मेटल, और उसने क्या किया, अपने महल में आने वाले गरीब लोगों को या नॉर्मल लोगों को गोल्ड या सिल्वर के बर्तन में खाना देता था, और जो बहुत मतलब कि दोज हु आर वेरी डिस्टिंग्विश उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना देता था। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड विथ एल्यूमिनियम कि उसने अपने बटन्स भी जो है वो एल्यूमिनियम के बनवा रखे थे। बट लेटर ऑन इट was later on it was कि aluminium became the begging bowl, मतलब बट इट इज यूज कॉमनली इन एवरीवेयर। अगर आप अपने घर के आसपास भी देखोगे तो अल्युमिनियम के टिन, टीन मतलब हम लोग बोलते हैं दिस यूज्ड। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अल्युमिनियम। माइका, दिस क्वेश्चन केम फॉर 5 में ही आया है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइका? माइका आपको पता कैसा होता है? प्लास्टिक देखा आपने अपने घरों में, जो आपके ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स होते हैं, वो बैग नहीं, प्लास्टिक्स। इट जस्ट लुक्स लाइक प्लास्टिक। इट्स फाउंड इन द ग्रीनिश कलर ऑल्सो, एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में होता है। और अगर आप उसको मतलब कि बनाओगे ना, तो जितनी हमारी उंगली का ये मतलब कि जो थिकनेस है ना, इतने में 1000 शीट्स आ जाएंगे। इट्स सो थिन। एंड राइट नाउ जैसे हमारे इंसुलेटिंग होते हैं, द आयरन, देन हमारे जो हीटर्स, इन सब में जो है माइका इज यूज्ड। आजकल तो वी आर हैविंग द एलईडी ट्यूब लाइट्स, लेकिन जो पुराने जमाने में ट्यूब लाइट्स आते थे ना, तो उनमें ना स्टार्टर्स होते थे, इतने छोटे से स्टार्टर्स बने होते थे। देवर दे वुड लुक लाइक दिस, ऐसे, ऐसा बना हुआ होता था। तो ये जो ढक्कन होता था ना, इसके अंदर जो है पतली सी शीट लगाई जाती थी ऑफ माइका, एंड दैट इज बिकॉज इट विल बी क्रिएटिंग द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। गर्म करने का जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर होता है। एंड देन इट ऑल्सो हैज अ लो पावर लॉस, and that is why mica is called as indispensable part of electric and electronic industries. That is why it is done, and it is again very costly, but definitely we use it. हमारे जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, इवन इन योर मोबाइल्स, आपके जो है नीचे शीट्स लगती हैं माइका की, जो मोबाइल का आपका मदरबोर्ड वगैरह बनता है उन सब में यूज होता है। इट्स एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। इट्स अगेन फाउंड इन द छोटा नागपुर, दैट इज छत्तीसगढ़ के अगेन। कोदरमा गया, दैट इज आपका झारखंड वाला। अजमेर आपका बहुत बड़ा मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। एंड नेल्लूर, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, आपका गोदावरी के पास, इट इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ये तो हमारे थे अभी तक। ऑल वी हैव डन आयरन, मैग्नीज, माइका एंड कॉपर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, maybe you may get on mica, or you may get, but the iron ore belts are very important. The next one is rock minerals, यानी कि I said that कुछ आपके ऐसे होते हैं जो सिंपल एक ही रॉक में होते हैं। जैसे एक रॉक के अंदर आपके अलग अलग ओर्स हो सकते हैं, लेकिन लाइमस्टोन आपका जो है which comprises of the calcium carbonates which is specifically in the water, आपके जो जहां पर आपके पानी होता है उन जगहों पे फॉर्म होता है, ये आपका जो है इट इज अ सिंगल मिनरल, and this is used for, I have already told, it is used in the cement industry along with other area। हमारे पोटैश, लाइमस्टोन, ये सब मिलाकर हमारा सीमेंट बनता है। और ये आप अगले चैप्टर में लर्न करोगे हाउ इज सीमेंट मेड, मतलब वो 1 मार्क का क्वेश्चन है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर। बेटा मेल्ट का मतलब होता है, मेल्ट का मतलब होता है उसको जो है क्या करना, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में। तो जब आप उसको मार कर स्मेल्ट करते हो, यू मस्ट हैव सीन द ब्लास्ट फर्नेस, उसको तोड़ते हो, उनको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो लाइमस्टोन इज यूज्ड देयर आल्सो।
Now, I told you in the very beginning that we extract all these minerals from the nature using mining and quarrying. Remember, mining and quarrying. ये वाला जो मैं पढ़ा रही हूं, this is in the book. आपके left side में it is given in a box, and this has again come. माइका वाला जो क्वेश्चन है उसके साथ ये ऑप्शन में आया हुआ है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, या फिर आपके जो है इट मे कम लाइक कि माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट, येट माइनिंग इज वेरी डेंजरस, एक्सप्लेन। इसका मतलब है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। ये आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हो, प्लीज डोंट लाफ एट माय ड्राइंग। दिस इज अ कोल माइन, और ये बाहर निकल रहा है, छोटे से आपके जो है छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, गुड्स के ट्रेन होते हैं, वो अंदर से लेकर आते हैं। तो ये जो माइंस होते हैं दे आर नॉर्मली ईदर, अगर ओपन पिट है तो मिट्टी होती है, एंड इफ दे आर क्लोज्ड, जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन लुक इनटू द मूवी दैट इज कोयला। कोयला एंड वन मोर मूवी इज देयर, दिस इज ओल्ड मूवी है कालिया। दे आर ऑल इन अ क्लोज सर्कल, और मोस्ट लाइकली जैसे हम कोल माइनिंग कहते हैं, तो कोल की माइनिंग में क्या होता है, एक तरफ से पूरा पानी जो है वो फ्लो कर रहा होता है, और दूसरी तरफ से आपके जो है मतलब गड्ढे पड़े होते हैं। इफ यू लुक इनटू द न्यूज़पेपर, अभी रिसेंटली इट वाज देयर, लास्ट ईयर आई थिंक ड्यूरिंग द पैंडेमिक या उससे पहले था, there were many people who were trapped inside these mines। बहुत सारे लोग जो है माइंस के अंदर ट्रैप हो गए थे। सो माइनिंग इज नॉट अ वेरी इजी वन, वहां नेचुरल लाइट नहीं होता है, और देन जब आप माइनिंग करते हो तो व्हाट हैपेंस इज, आप जो हो निकाल रहे हो तो मिट्टी आ रही है, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, सो द पीपल माइट बी प्रोन टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। देन दे आर ऑल्सो, वहां का जो आसपास का एरिया होता है, दे आर मोर डर्टी, फिल्दी। और जैसे मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है, चट्टान जो है, ये जैसे मैंने कोल माइन बनाया है, ये चट्टान है, तो चट्टान आके बंद हो जाएगा, एंड देन समवन हैज टू रिमूव इट फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से किसी को उसे रिमूव करना पड़ता है। इन द सेम मैनर, जब आप ओपन पिट माइनिंग करते हो, खुला, तो ये जो ओपन पिट है, ये तो मैं आपको बता रही हूं खुला, बट इट इज एक्चुअली अ लार्ज ट्रैक्ट। तो आसपास का जितना इलाका आपका होता है, वहां का जो मतलब कि जो अंडर वाटर है वो खराब हो जाता है। द नियर बाय जो एरियाज होते हैं, वहां का जो फार्म लैंड होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, एंड समटाइम्स माइनिंग करने के बाद उसे खाली छोड़ दिया जाता है, तो उन पिट्स में पानी भर जाता है, विच अगेन सॉइल को खराब कर देता है। सो इवन दो माइनिंग इज द वे थ्रू विच people extract the minerals, but then also it is called as the killer industry. Why is mining called a killer industry? This is a reason. That is why it is very important कि हम लोग इन चीजों को ध्यान में रखें। Now as I said, minerals, हम लोगों ने पढ़ा आयरन ओर, कॉपर, वी ऑल्सो हैव कॉपर के अलावा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, बट दीज मिनरल्स आर नॉट फॉर्म्ड इन वन डे, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। जितनी जल्दी हम लोग इनको खत्म कर रहे हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड सो क्विकली।
ये फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब कम है, they cannot be renewed immediately, so therefore we must use non renewable. मैंने अभी आपको बताया था कोल के अंदर क्या होता है, अभी कोल हम पढ़ेंगे, कोल के अंदर देन आपके कॉपर के अंदर क्या होता है, स्क्रैप्स होते हैं, से बड़े बड़े आपके जो है शीट्स हैं, या फिर आपके बड़े बड़े यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ बड़े बड़े, इफ यू हैव सीन एनी इंडस्ट्री, तो वहां पर ना बड़े बड़े ऐसा लगेगा जैसे कि टायर से रखे हुए हैं, द जो आपके व्हेन दे आर मेकिंग दी कॉपर, लेकिन उसके जो स्क्रैप्स होते हैं ना, नॉर्मली दे वुड बी डिस्कार्डिंग, उसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम उन स्क्रैप्स को भी यूज करें, इफ वी आर यूजिंग द लो ग्रेड मिनरल्स, अभी हम कोल में पढ़ेंगे द लो ग्रेड मिनरल्स लाइक पीट, देन हम लोग हाई ग्रेड को सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर. इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स हमने लर्न किया था दैट वी मस्ट सस्टेन, वी मस्ट यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो बच्चा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर यूजिंग नॉन रिन्यू, आप जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उन्हें यूज करोगे तभी पॉसिबल है. एंड वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव. कल मैं पढ़ रही थी, आई थिंक गुजरात है या महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है आई थिंक, yesterday only I was reading in the newspaper that महाराष्ट्र का जो एयरपोर्ट है that is completely going to be undertaken with solar energy, and मतलब no, they would be going for the non conventional. तो अगर हम लोग जो है ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ऑल्टरनेट्स को यूज करते हैं, अब देखिए एज आई सेड माइका इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट, कॉपर its use has increased, iron is the main content for all the industries. आप चाहे आपका इंडस्ट्री जो है छोटा सा, मतलब कि छोटी सी मशीन आपकी फैक्ट्री हो या बड़ी सी फैक्ट्री हो, यू यूज मतलब कि आपको, देन अगर हम इन सब चीजों को खत्म करेंगे तो फिर आएगा कहां से, उनको बनने का भी तो टाइम चाहिए. एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट गो फॉर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज which may take time. We need technology, but if we develop technology, we can use those and then save the other minerals for future purposes. यहां तक तो जो हमने पढ़ा था बेटा ये सारे आपके थे मिनरल रिसोर्सेस. अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द एनर्जी रिसोर्सेस. नाउ व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेस? द वन विच गिव्स अस लाइट, which gives us fire like coal आपका, then आप कोल यूज करते हो, पेट्रोलियम यूज करते हो, नेचुरल गैस यूज करते हो, ये आपके सारे जो है एनर्जी रिसोर्सेस में आते हैं. In the energy resources, to start off, we will be starting only with conventional and non-conventional today, and in the next class I'll be proceeding towards all the energy resources. डिफरेंस बिटवीन आया हुआ है एक या दो बार बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मीन्स, कन्वेंशनल का मतलब होता है बच्चा जो हम रूटीन में यूज करते ही आ रहे हैं, विच हैव बीन इन यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, सबके घर में आता मीन्स राइट. आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है? यू ऑल नो, कोल को जो है जलाकर, द कोल इज टेकन, और उससे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिराइव किया जाता है राइट. एंड दिस कोल को बर्न करके जो हम मतलब कि एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, दे आर ऑल कन्वेंशनल मेथड. थर्मल हम बोलते हैं, जो हम लोग थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, तो थर्मल के अंदर जहां हम ये यूज कर रहे हैं. बट स्टिल आपको पता है कोयला अगर जलता है तो उससे आपका पोल्यूशन भी होता है, एंड दैट इज व्हाई वी यूज दे आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल. वेयर आपके नॉन कन्वेंशनल है विच आर रिन्यूएबल, द वन विच आर पोल्यूशन फ्री, which but as I said still
many of the countries are not having enough technology to use them. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. तो जो हमारे कन्वेंशनल है वो हमारे पोटेंशियल में आ जाते हैं, डेवलप में आ जाते हैं. स्टॉक रिजर्व हमारे नॉन कन्वेंशनल में आते हैं, जिनके लिए वी रिक्वायर मोर टेक्नोलॉजी लाइक सोलर एनर्जी. Solar energy does not cause any pollution, and moreover it is renewable. Yes, we are using solar energy at many of the places right now. Tidal, मैं आपको बताऊंगी where it is used. अगर आप में से कोई बच्चा पटौड़ी विलेज के पास गया हो, ब्रह्म कुमारी आश्रम, वहां जो मेन है, the entire plant is using solar energy. Tidal, जो टाइड्स आपके समुद्र के टाइड से यूज होते हैं. जियोथर्मल, आपके जमीन के नीचे जो आपका रॉक है उनके वॉल्केनो से. बायोगैस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन इन द रूरल एरियाज, एंड एटॉमिक एनर्जी. These are the non-conventional which we are using but not completely. So with this, for today the session will be over, but in the next class I'll be taking all the non-conventional, and उसके अंदर से आपके पेपर में जो है questions important आते हैं, like why are conservation of energy important. देन आपका पेट्रोलियम पे क्वेश्चन आता है और कोल पर आता है. जैसे आपका क्वेश्चन मैंने बताया था ना आयरन और बेल्ट पर, सेम आपका एक क्वेश्चन आता है कोल में, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल्स अवेलेबल. मतलब उसमें से इंपॉर्टेंट आपका वही है. देन द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर ऑल स्मॉल क्वेश्चंस विच आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपके कोल का फॉर्मेशन, एनर्जी को क्यों हमें, मतलब कि व्हाई वी नीड टू कंजर्व, वी हैव ऑलरेडी डन फॉर मिनरल्स, द सेम कैन बी यूज्ड फॉर द एनर्जी आल्सो. सो दिस इज द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस.